So this is the third lecture in the series of Unit 3, which is based on highway materials and their testing. So today we'll see the soil as a highway material. So it is, as I have told you in the previous lectures, that it is the bottommost layer which is called as soil subgrade. So it is the top soil layer there which is known as soil subgrade. So pavements are conglomeration of materials. It means pavements are group of materials or mixture of materials. These materials and their associated properties and their interaction determine the properties of the resultant pavement. Thus, a good understanding of these materials, how they are characterized and how they perform its fundamental, these are very much necessary to understand. The material which are used in the construction of highway are intense interest to the highway engineer. It is very much important for us as a highway engineer to understand the behavior and how they perform in different situations and how they are interact with the other materials. So it is a very much of importance to know the highway material. So soil subgrade we'll see. Soil is an accumulation or deposit of earth material. As you know, it is derived from the disintegration of rocks. जैसे जैसे rocks disintegrate होती है, it can be due to any kind of weathering or decay of vegetations that can be excavated readily with power equipment in the field or disintegrated by gentle mechanical means in the laboratory. So soil के बारे में आपने पढ़ा ही है कि it is derived from the disintegration of rocks. The supporting soil beneath the pavement and its special undercourse is called subgrade. जो टॉप लेयर होती है जहाँ पे हम कहीं पेवमेंट बनाएंगे, उसकी जो टॉप लेयर होती है वही हमारा सॉइल सबग्रेड है. द अनडिस्टर्ब्ड सॉइल बीनीथ द पेवमेंट इज कॉल्ड नेचुरल सबग्रेड. कॉम्पैक्टेड सबग्रेड इज द सॉइल कॉम्पैक्टेड बाय द कंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ द कॉम्पैक्टर्स. अनडिस्टर्ब्ड सॉइल का मतलब है कि वी हैव नॉट एक्सकेवेटेड दैट, वी हैव नॉट डिस्टर्ब द सॉइल सैंपल and it is the same soil which is being present there for a long time. अगर हम उसको एक्सकेवेट करके उसको फिर दोबारा से डंप करके उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, then that will be called a disturbed soil. ओके, फिर हमको उसको कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा थ्रू वेरियस टाइप ऑफ रोलर्स और कॉम्पैक्टर्स दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर कॉम्पैक्टिंग द सॉइल. ये आपको एक सॉइल सबग्रेड का टिपिकल फिगर शो किया गया है. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन विच द सॉइल हैज़ बीन क्लासिफाइड. ब्रॉडली सॉइल्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज लेटराइट सॉइल, मरूम सॉइल और डेजर्ट सैंड, एलुवियल सॉइल, क्ले सॉइल एट्सेट्रा. Here are the textural classification of soil in which clay, silt and sand are being shown on the triangular axis, and the textural classification based on the percentage of different type of fraction has been shown in the figure. This textural classification you have studied in the soil mechanics subject. Okay, here is the classification of soil based on the particle size. So sand varies between 2 mm to 0.06 mm. Silt varies from 0.06 to 0.002 mm, and less than 0.002 mm particle size are called as clay, and they are further classified as coarse clay, medium clay and fine clay. So you have also studied this in the soil mechanics. Now we'll see the type of soil. Gravels are coarse material of size greater than 2.36 mm, as I have shown you. 2 mm से ऊपर के ग्रेवल्स होते हैं 2.36 mm with little or no fines contributing to cohesion of materials. इसमें cohesion नहीं होता है, ठीक है. फिर है मूरम. These are the products of decomposition and weathering of the pavement rock. कोई भी जो परमानेंट जो पेरेंट रॉक होगी, पेरेंट रॉक, उसकी वेदरिंग और उसके डिकम्पोजिशन से जो मटेरियल प्राप्त होगा दैट इज कॉल्ड मूरम. Visually these are similar to gravel except the presence of higher contents of fines. ये सेम होते हैं ग्रेवल जैसे, पर इसमें जो फाइन्स होते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं. दैट आर फाइन्स आर द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉइल. जो होते हैं वो इसमें हायर
कंटेंट या हायर परसेंटेज में होते हैं देन सिल्ट. दीज आर वेरी फाइनर पार्टिकल देन सिल्ट, ब्राइटर इन कलर एंड आर as compared to clay and exhibit little cohesion as compared to the gravel and maroon. Silts contain little cohesion. When a lump of silty soil mixed with water and alternately squeezed and taped, a shiny surface makes its appearance. क्या बोल रहा है, आप थोड़ा सा सॉइल सिल्टी सॉइल ले और उसमें हल्का सा पानी मिलाएं और उसको स्क्वीज़ करें. जब आप स्क्वीज़ करके उस पर एक बार हाथ ऐसे करके रब करेंगे तो ये शाइनी सरफेस देगा. सो इट्स अ फिजिकल टेस्ट फॉर सिल्ट. Thus, dilatancy is specified property of such soil. Dilatancy टेस्ट किया जाता है सिल्ट का for physical examination to examine whether it is a silt or clay. These clay के लिए देखते हैं. These are the finer silts, finer than silts. Clay soil exhibit stickiness, high strength when dry, and shows no dilatancy. Black cotton soil and other expensive clays exhibit swelling and shrinkage property. That is, on the mixing of water it can increase in volume, and on the depletion of water it can decrease in volume. तो soil और shrinkage की property होती है black cotton soil में and other expensive clays में. Paste of clay with water when rubbed in between fingers layer leaves stain which is not observed for silt. मतलब ये आपकी उंगलियों के निशान छोड़ जाएगा जब आप इसको दबाएंगे हल्का सा पानी डाल के. तो ये हल्का सा आपको क्या छोड़ जाएगा, आपकी उंगलियों के निशान छोड़ जाएगा. दिस इज द फिजिकल टेस्ट फॉर क्लेज. सो देयर आर वेरियस टेस्ट दैट आर बीइंग परफॉर्म्ड टू एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ सॉइल. फॉर सॉइल स्ट्रेंथ, shear strength test are used. Bearing tests are there to compute the bearing capacity, how much load a soil can easily bear or can take. So we will see the two important tests of soil in this chapter. First is California bearing ratio test and other is the plate load test. So California bearing ratio test is developed by the California Division of Highway as a method of classifying and evaluating soil subgrades. Soil subgrade को classify और उसकी properties को evaluate करने के लिए होता है. and base course material for flexible pavement. सही है, ये एक empirical test है और इसको यूज़ करते हैं हम to determine the material property for pavement design. pavement design करने के लिए material की property को determine करने के लिए ये empirical method है, एक CBR test. ठीक है. इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक पिस्टन होता है. पहले मैं आपको फिगर शो करा देता हूँ. हेयर इज़ द फिगर विच इज़ शोइंग. यहाँ पे हम लोग एक सॉइल सैंपल लेते हैं. सॉइल सैंपल पे ऊपर एक स्टैंडर्ड प्लंजर लगा होता है और उस प्लंजर पे ऊपर से लोड लगाया जाता है. इस स्टैंडर्ड प्लंजर का जो साइज़ लेते हैं हम लोग वो 50 mm लेते हैं और इस 50 mm डायमीटर के साइज से जो एरिया कैलकुलेट करके आता है वो आता है 19.63 सेंटीमीटर स्क्वायर. इस प्लंजर के संग एक डायल गेज अटैच होता है जो कि पेनिट्रेशन की वैल्यूज़ को नोट करता रहता है एट डिफरेंट टाइम्स. उसके नीचे एक सॉइल सैंपल है और जो लोड अप्लाइड होता है उसमें लोडिंग की जो रेट रहती है वो रेट रहती है 1.25 mm पर मिनट. यानी 1.25 mm पर मिनट की दर से इस प्लंजर को इस सॉइल सैंपल के अंदर पेनिट्रेट कराया जाता है. सो ये फिगर आपको शो कर दिया गया है. ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग CBR टेस्ट में जो मोल्ड बनाते हैं वो 150 mm साइज़ का मोल्ड होता है. ठीक है. और जो पेनिट्रेशन जो हम कराते हैं वो जनरली हम लोग 2 पेनिट्रेशन पे लोड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट होती है 2.5 mm पेनिट्रेशन, जब ये प्लंजर 2.5 mm पेनिट्रेट कर जाएगा. सेकंड होती है 5 mm पेनिट्रेशन, जब ये प्लंजर 5 mm पेनिट्रेट कर जाएगा. तो 2.5 mm पे जो लोड होगा वो उसको नोट कर लेंगे, 5 mm पे जो लोड होगा उसको नोट कर लेंगे. उसके बाद CBR कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है. CBR कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है लोड कैरीड बाय द स्पेसिमेन एट 2.5 mm और 5 mm पेनिट्रेशन डिवाइड बाय लोड कैरीड बाय द स्टैंडर्ड एग्रीगेट इनटू मल्टीप्लाई बाय 100. तो स्टैंडर्ड लोड कैरीड बाय द स्टैंडर्ड एग्रीगेट दैट हैज़ बीन गिवन. और अगर 2.5 mm पेनिट्रेशन स्टैंडर्ड एग्रीगेट में कराते हैं हम लोग तो स्टैंडर्ड एग्रीगेट 1370 kg का लोड ले सकता है.
वाइल एट 5 mm पेनिट्रेशन स्टैंडर्ड एग्रीगेट 2055 kg का लोड ले सकता है। बस अब हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करके डिफरेंट पेनिट्रेशन के लिए हम लोग CBR वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली 3 सैंपल्स हम लोग सॉइल के लेते हैं टू कैलकुलेट द CBR वैल्यू, और CBR वैल्यू अगर 5 mm की ज़्यादा आ रही है 2.5 mm से तो हमको टेस्ट को रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि CBR की जो वैल्यू है वो 2.5 mm पे ज़्यादा आनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द 5 mm। अगर CBR की वैल्यू बढ़ती जा रही है देन वी विल गेट द हायर क्वालिटी ऑफ सॉइल सबग्रेड, और अगर CBR की वैल्यू कम है तो इट विल बी अ पुअर क्वालिटी ऑफ सबग्रेड। तो ये हो गया हमारा कैलिफोर्निया रेशियो टेस्ट के बारे में। नाउ वी विल सी द प्लेट बेयरिंग टेस्ट। प्लेट बेयरिंग टेस्ट में हम लोग प्लेट बेयरिंग टेस्ट इसकी सॉइल की सपोर्टिंग कैपेसिटी को फाइंड करने के लिए करते हैं, और इससे हम लोग मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन को भी फाइंड करते हैं। इसके अपरेटस में हम लोग जो प्लेट यूज़ करते हैं उसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 45 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 60 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 75 सेंटीमीटर भी हो सकता है। जनरली 75 सेंटीमीटर डाया की प्लेट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब प्रोसीजर क्या होता है इसका, सॉइल सबग्रेड पर हम लोग 0.07 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 75 सेंटीमीटर की प्लेट पर 300 kg का लोड लगाया जाता है। तो जो प्रेशर निकल के आता है वो आता है 0.07 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। अब जब स्टार्ट में इसके द्वारा हम लोग स्टार्ट में 0.25 mm का डिफ्लेक्शन इसमें क्रिएट करते हैं, जिसको धीरे धीरे बढ़ाकर हम लोग 0.175 सेंटीमीटर तक कर देते हैं। मतलब जब ये लोड लगेगा तो इनिशियली हम लोग जो डिफ्लेक्शन होगा प्लेट में, वो जो ज़मीन के अंदर जाएगी वो 0.25 mm जाएगी, फिर हम इसको बढ़ाते बढ़ाते हम लोग 0.175 सेंटीमीटर तक ले जाते हैं, यानी 1.75 mm तक ले जाते हैं। और इसको जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते हैं तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, तो हम लोग लोड और डिफ्लेक्शन के बीच में एक कर्व ड्रॉ करते हैं, और इस कर्व से हम लोग 1.25 mm की डिफ्लेक्शन के लिए जो लोड की वैल्यू आती है उसको नोट कर लेते हैं, और जिससे कि हम लोग सॉइल सबग्रेड या मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन को फाइंड करते हैं। अब मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन क्या होता है, के इसको रिप्रेजेंट करते हैं के से, और के होता है लोड अपॉन डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन हमें पता है 1.25 mm या 0.125 mm, और इसके करस्पॉन्डिंग लोड की वैल्यू रख के हम लोग मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं इन kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेट लोड टेस्ट, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड प्लेट लेते हैं 75 सेंटीमीटर की, और स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन लेते हैं हम लोग 1.25 mm या 0.125 सेंटीमीटर का। सो इन दिस वीडियो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द एग्रीगेट्स।